हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी क्लासेस एंड विपिन सर इंग्लिश वाले चैनल गाइस। आज हम फिर से हमारी जो लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इसको आज हम करने वाले हैं। यार, व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड? व्हाट वाज रिटन इन द लेटर? मतलब जो लेंचो है उसने पत्र गॉड को क्यों लिखा, यानी भगवान को क्यों लिखा, और उस लेटर में क्या था? So the Lancho was a hard-working farmer with a large family. Once the much-needed and pleasant rain was flowed, very large hailstone and the corn standing in Lancho's field was totally destroyed. So he wrote a letter to God. So destroyed, यहाँ से था destroyed, nothing was left for the poor Lancho and his family. So he wrote the letter and asking him for 100 pesos in order to sow his field again and for living until the new crop came. The letter received by a postman. The postman also read it. He collected a 17 pesos and sent it to Lancho. गाइस, ये था लेंचो के बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन। तो गिव अ ब्राइट कैरेक्टर स्केच ऑफ पोस्ट मास्टर। तो यार, पोस्ट मास्टर के बारे में बताना होगा हमको यहाँ पे ना। तो देखो, जो पोस्ट मास्टर था वो कैसा था? अ फैट एंड अमेबल फेलो, मतलब कहने का मोटा ताजा, मतलब बढ़िया हंसमुख इंसान था वो। द पोस्ट मास्टर वॉज फेट एंड अमेबल फेलो व्हेन द postman showed him a letter addressed to God. He broke out the laughing. He broke out the laughing. अब उसने जो देखा, faith in God. The postmaster had keep faith in God. He was surprised. See the Lancho's faith in God. He said, "What a faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter." मतलब कि मेरे पास भी काश ऐसा फेथ होता, विश्वास होता जो उस फार्मा कार्नी लेंचो का था गॉड के प्रति। काइंड एंड सिंपैथेटिक। द पोस्ट मास्टर सॉ द लेटर एड्रेस टू गॉड. ही रीड द कंटेंट ऑफ द लेटर. ही डिसाइडेड टू हेल्प द लेंचो. ही कुड नॉट अरेंज मनी इन फुल, but he collected some money from his employees. He also gave a part of his salary. Thus, he helped Lencho. This shows his kindness. ठीक है ना? तो ये बताता है कि वो कितना काइंड था और उसने कैसे लेंचो की मदद की। तो what was Lencho justified in calling for post office employees as a bunch of crooks? क्या लेंचो को डाकघर के कर्मचारियों को ठगो कहना उपयुक्त था? The post office employees were nice and generous. They laughed when they saw the Lancho's letter addressed to God, but soon they became serious because they were impressed by Lancho's faith in God. They decided to send him money. They collected a 70 peso and sent to it Lancho's. When Lancho opened the envelope, he found it the 17 pesos, whereas he had asked God for 100 pesos, but he thought the post office people had taken away 30 pesos from the envelope. So he called them the bunch of crooks. But he was not justified in calling them crooks, but only shows his firm faith इन गॉड एंड हिज इनोसेंस, है ना? इनोसेंस को यह बताता है। तो देखिए, आते हैं नेक्स्ट पर हमारा। देखो यार, हिंदी, हर एक क्वेश्चन का हिंदी नीचे दिया गया है, तो आप लोग अपने मन से भी चाहे तो उसको अपनी वर्डिंग में आंसर को लिख सकते हैं ना। आते हैं नेक्स्ट पर। व्हाट काइंड ऑफ पीपल वर द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज? द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर काइंड, generous and honest people. They laughed when they saw Lancho's father addressed to God, but soon they became serious because they were impressed by the Lancho's faith in God. They decided to send him some money. They collected 17 pesos and sent it to Lancho. In this way, they helped the farmer in his need. So they did not disappointed a person with the utmost faith in God. So मतलब ये कहने का धागा, कर्मचारी वो दयालु, उदार, ईमानदार सब थे। और उन्होंने देखा कि जब पहले तो वो हंसे, फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि लेंचो का जो विश्वास था भगवान के लिए वो कितना अच्छा था, तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो उनको
पैसा भेजेंगे। सो गिव अ ब्राइब कैरेक्टर, अभी हम बात करेंगे। देखो अभी हमने ये याद रखिए कैरेक्टर स्केच एक ना एक किसी का मिलेगा, है ना। तो यार देखो ये कैरेक्टर स्केच हम किसका पढ़ने वाले हैं, लेंचो का। किसका, लेंचो का। अब पहले हमने जाना था पोस्ट मार्च का, तो ऑब्वियस है वी नो दैट जो हार्ड वर्किंग फार्मर था लेंचो। लेंचो वाज अ हार्ड वर्किंग फार्मर, he worked hard in his field, he worked like on an ox, so he had good crop. His deep faith in God. His family had nothing to eat. He believed that God would not let him die to hunger. So he wrote a letter to God and requesting to send him the 100 pesos. God's help. The postmaster received the letter through the mail. He opened the letter and read. He collected money from his employees and he also gave a part of his salary to see the great faith of God. Lencho's postmaster was also surprised. ठीक है ना। तो वो जो लेंचो का कहने का मतलब है, जो देखो वो तो एक हार्ड वर्किंग पर्सन था, उसका जो विश्वास था भगवान के प्रति और भगवान ने उसकी मदद की। तो भगवान ने तो नहीं की थी मदद, मदद किसने की थी आपकी, जो पोस्ट मास्टर था उसके दोस्तों ने, और पोस्ट मास्टर ने कुछ अपनी सैलरी से कुछ पार्ट उसमें दिया था। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पर। तो वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, द लेंचोज हाउस वॉज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ द हिल। ठीक है ना, ये तो पहले ही बता चुका है। वाई डू यू थिंक इट इज टर्म्ड एज द हाउस एंड नॉट अ हाउस, मतलब तुम्हारे विचार से अ हाउस के स्थान पर द हाउस क्यों कहा गया है। क्योंकि यार देखो द हाउस क्यों क्या है, द ऑर्थर कॉल्ड इट द हाउस एंड नॉट अ हाउस बिकॉज इट वॉज द ओनली हाउस इन द वैली। मतलब द हाउस इसलिए कहा क्योंकि पूरी वैली में, पूरे पहाड़ में उसका एक ही घर था, इसलिए उसे द हाउस कहा गया। अगर आ हाउस होता तो मतलब बहुत सारे हाउस थे वहां पे। हाउ डिड लेंचो प्रिडिक्ट अ रेन, लेंचो प्रिडिक्टेड अ रेन बिकॉज ही हैड सीन द क्लाउड्स इन द नॉर्थ ईस्ट, है ना। उसने नॉर्थ ईस्ट में बादल देखे, इस वजह से उसने भविष्यवाणी की भाई कि पानी आ सकता है। व्हाट हैपेंड एट द डिनर टाइम, एट द डिनर टाइम बिग ड्रॉप ऑफ द रेन बिगेन टू फॉल, जो पानी की बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो आना स्टार्ट हो गई। व्हाट डिड द राइटर कॉल्स अ न्यू कॉन्स, तो लेंचो कॉल द रेन ड्रॉप न्यू कॉइन्स एंड द रेन ड्रॉप्स वुड इन रीच द हार्वेस्ट, ही विल गेट मोर मनी by selling it. So the raindrops have been called the new coins. Okay. Why are hailstones called frozen pearls? The hailstones are called frozen pearls because they were resembling new silver coins. तो उनको ऐसे कैसे रिसेंबल किया जाता है, उसको क्या बताया जाता है कि जो आपके ओले गिरे थे वो क्या थे, उसने क्या बोला था उसको, सिल्वर कॉइन्स। ठीक ना। How long did the rain did the hail rain, the hail rained an hour, एक घंटे तक गिराता था। What harm did the hail rain cause to Lancho? The hail rain completely destroyed the crop, the Lancho's field. The corn was totally destroyed and destroyed. What made Lancho sad? Lancho became sad because his crops was completely destroyed by the hailstorm. So, what was the Lancho's only hope? The good God was the Lancho's only hope. To whom the Lancho write a letter and why? The Lancho wrote a letter to God and he wrote the letter to help from God. What was written in the letter? In the letter, Lanchos wrote, God, if you don't help me, my family and I will go in hunger this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes. Why would Lancho's family go hungry that year? The Lancho's family would go hungry that year because they the corn to totally destroyed. क्योंकि यार उसकी जो कॉर्न की फील्ड थी वो क्या हो गई थी, टोटली डिस्ट्रॉयड, सारी तरह से खत्म हो चुकी थी। Who loved to see the Lancho's letter? तो अभी द postman था जो loved to see the letter that because never in his career he know that address, मतलब उसने अपने करियर में, अपने जीवन काल में कोई ऐसा पता देखा ही नहीं। Who resolved to help the Lancho? The postmaster resolved to help the Lancho. How did the post office
employees help Lancho. The post office employees help Lancho by giving some money. Postmaster also gave a part of his salary, and in this way that they collected 70 pesos and gave them to Lancho through an envelope by the court. Did the post office employees get Lancho's thanks for helping him? No, the post office employees did not get Lancho's thanks for helping him. You know. So why did Lancho call the post office employees and why? So Lancho's called the post office employees a bunch of crooks because they thought they have taken out the money from the Lancho's envelope. यार उन्होंने उसके क्यों कहा था ठगों का सुनो कि उनको उसको लग रहा था कि जो कुछ पैसा था जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी थे उन्होंने निकाल लिया। चलिए मैचिंग करते हैं। तो क्रीस्ट का मैचिंग आपको किसके साथ होने वाला है? पीक के साथ। पीक मतलब चोटी। प्रिडिक्ट मतलब भविष्यवाणी होती है, तो प्रिडिक्ट का आपका रहेगा मेड फॉर द फॉरकास्ट। फॉरकास्ट होती है ना। लोकस्ट मतलब आपका होता है ग्रास हॉपर कह सकते हैं, पार्ट ऑफ द डिस्ट्रॉय क्रॉप, है ना। मतलब एक ऐसा इंसेक्ट जो क्या क्रॉप को खत्म कर सकता है। अमीएबल मतलब फ्रेंडली कैरेक्टर। रेजोल्यूशन है प्रॉमिस टू वन सेल्फ। चैरिटी मतलब क्या होता है? आर्म्स गिव हेल्प। क्रूक्स मतलब चीटर्स। ठीक है। राइट द एंटोनियम। देखो अप्रोचिंग का जो एंटोनियम होगा आपका रिसाइडिंग। क्या होगा? रिसाइड। सेटिस्फाइड का क्या होगा? डिससेटिस्फाइड। रिक्वेस्टेड का ऑर्डर और प्लेजर का सॉरोफुल। अर्लियर का लेटर। फ्रेंड्स का एनिमी। यूज द ग्रुप ऑफ वर्ड। ये आपका देखिए यहाँ पे ये कुछ ग्रुप वर्ड है, ये आप लोग इसके हेल्प से आप लोग सेंटेंस बनाना सीख सकते हैं। तो आस्क फॉर, आई आस्क फॉर मनी फॉर द माय फादर टू पास। इफ it went raining, asked did not pass quickly. Suddenly the fighting broke out the prison cell. Broke out मतलब suddenly क्या हुआ? वो उन दोनों prison cell में क्या हुआ? फाइटिंग स्टार्ट हो गई। तो भाई बाकी ये आप लोग देख रहे हैं इन सब के वर्ड्स के, आप लोग कुछ वर्ड सेंटेंस बनाइए और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। आई होप गाइस आपको ये चैप्टर समझ आएगा। आपको समझ आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और शेयर करना मत भूलना। ये हमारा द लेटर टू गॉड का लास्ट पार्ट था जिसमें हमने बहुत सारी क्वेश्चन आंसर को कवर किया। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।